وجہ تخلیق دو عالم ہے محمد مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حوریہ فہیم۔ ناظرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سرور کائنات، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ستائش کا نام نعت ہے۔ نعت نثر میں بھی ہو سکتی ہے اور نظم میں بھی، اور ایسی شاعری کو کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کی گئی ہو نعتیہ شاعری کہتے ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعتیہ شاعری پسند فرمائی، اور خود خالق کائنات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف پسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف قرآن پاک میں کی ہے۔ قرآن کریم وہ صحیفہ نعت ہے جہاں سے نعت کی پہچان اور عرفان ابھرے، جہاں سے ثنائے سرکار کے آداب عطا ہوں، اور قرآن ہی ہے جو ہمیں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین انتخاب عطا کرتا ہے۔ اور ایک اچھے ثنا خواں کے لیے یقیناً باعمل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن پاک پڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے اور ساتھ ساتھ ثناخوانی بھی کریں تو یقیناً وہ لوگ جو ہماری ثناخوانی سنتے ہیں ان پر وہ ثناخوانی اثر بھی کرے گی، اور ہمیں دیکھ کر کہ اگر ہم باعمل ہوں گے تو وہ یقیناً وہ تمام چیزیں کاپی بھی کریں گے اور اچھے کام کی طرف راغب ہوں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام میں جو مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ آج ہمارے ساتھ پہلی مہمان شخصیت جو موجود ہیں یقیناً نعت خوانی کی دنیا کا سب سے بڑا اور بہت ہی پیارا چمکتا ہوا ستارہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نعت خوانی کی بدولت بہت زیادہ عزتیں عطا فرمائیں اور یقیناً مقبول بارگاہ رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان پر نظر کرم رہی، جس کی وجہ سے آج یہ ہمارے درمیان ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت نام ہے ثنا خوانی کی دنیا کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کی میری جانی پہچانی شخصیت محترمہ ام حبیبہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک اللہ کا ٹھاک؟ احسان ہے۔ میرے ساتھ دوسری مہمان شخصیت نعت خوانی کی دنیا میں ایک ابھرتا ہوا نام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقابلہ نعت جو QTV نے پیش کیا خواتین کے حوالے سے، اس میں حصہ لیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں سیدہ وجیحہ نادر۔ السلام علیکم۔ تیسری مہمان شخصیت نعت خوانی کی دنیا میں، ان کا بھی نام نیا نیا ہے لیکن بہت خوبصورت انداز میں ثنا خوانی کرتی ہیں۔ ان کا بھی تعلق مدحت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعتیہ مقابلے سے رہا، اور انہوں نے بہت خوبصورت کلام وہاں پیش کیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عائشہ ظفر۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ناظرین، پروگرام میں نعتیہ کلام شامل کرتے ہیں اور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں سیدہ وجیحہ نادر۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد برا سب سے ہوں میں اچھے نہیں گن مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن تیرے قربان جاؤں بات تو سن نسیمہ جانے دے بطحا گزر کن نسیمہ جانے دے بطحا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن
तेरा ऐवान आलम या मोहम्मद है तुझसे शान आलम या मोहम्मद तू ही है जाने आलम या मोहम्मद तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद ज़ेरुए लुत्फ़ सुए मन नजर कुन ज़ेरुए लुत्फ़ सुए मन नजर कुन नसीमा जाने बेबतहा गुजर कुन ज़ेहवान मोहम्मद रा खबर कुन। सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे आप, कैसा पढ़ा माशाल्लाह? इसमें आपने कई जगह ज़ेर लगा दिया, जैसे गुज़र कुन, रे पे रुक जाना है, आपने कहा गुज़री कुन। गुज़री कोई लफ्ज़ नहीं है। नसीमा जाने बेबत हा गुज़र कुन नसी, तो गुज़री कहा आपने, तो वो मतलब ज़ाहिर है कि उसको मतलब इस तरह से आपने तर्ज को उसमें इस तरह से करें कि लफ्ज़ पता चले कि आपने क्या पढ़ा। वो मिक्स हो गया उसमें, गुज़री इसलिए लग रहा है, वो मिक्स हो गया उसमें। और गला जो है आपका, उसको बहुत ज़्यादा नहीं फैलाएं, क्योंकि गले की क्वालिटी ऑलरेडी इनकी ज़रा थोड़ी फैली है ना, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। अच्छी आवाज़ अच्छी है, लेकिन ज़्यादा चीखने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल करके वॉइस को कंट्रोल करके। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, आप उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से रबिया अली बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत 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 पसंद है और मैं चाहती हूँ कि आपके शो में आना पसंद करूँगी। मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। आप पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, उसके लिए आपको ऑडिशन देना पड़ेगा QTV पे। अभी आप नाच सुनाएंगी? जी बिल्कुल सुनाऊंगी। आप कौन सी सुनेंगी? जो सी आप सुनाएंगी वो हम सुनेंगे। जी बिस्मिल्लाह। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, रूह शौकियत मखरूज हुई, दिल के तमाशा भूल गया, सुभान अल्लाह। तेरे रूह को इज़्ने नफ्स मिला, आज़ीदा जुनूबे दार हुआ, तेरे रूह को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी पढ़ी हुई नात पेश की है इन्होंने, आप बताएं कि उन्होंने कैसे पढ़ा? नात सही पढ़ी, लेकिन थोड़ा सा जो सेकंड मिसरा जो था उसका वो गलत पढ़ा उन्होंने। अच्छा। काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, यूं होशो खिरद मफलूज हुए, दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया। उन्होंने कुछ और कहा जो मेरी समझ में भी नहीं आया। लेकिन अच्छी आवाज़ अच्छी है, बहुत था। आवाज़ अच्छी है, बहुत अच्छी है। कॉन्फिडेंस ये था कि आप जो कहेंगी वो सुनाएंगे। तो आवाज़ अच्छी है जी हाँ। लेकिन थोड़ा सा तलफ़्फ़ुज़ सही कर लें, वो ज़रूरी है उसमें। बहुत अच्छा। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक वक्फा है और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे और इस दुआ के साथ जा रहे हैं कि सनाए सरकार है वजीफ़ा और कबूल सरकार है तमन्ना। सरकार हमारी सना को कबूल फरमाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सनाए सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं, आप सबकी पसंदीदा सना ख्वां, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा उम्मे हबीबा साहिबा। और आज जो हमारा प्रोग्राम है इसमें सना ख्वानी जो नात ख्वां कर रहे हैं, यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपका जो यहाँ पर ये वक्त है ये हमारे लिए बहुत कीमती है जो आपने हमें दिया है। नातिया कलाम शामिल करते हैं और सुनते हैं कि आयशा ज़फ़र कौन सी नात पढ़ रही हैं। जी आयशा। रोक लेती है आपके निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, और अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। सुभान अल्लाह। खालिद महमूद खालिद साहब का कलाम पेश किया आयशा। जी, आपने ख़ुद भी महसूस किया होगा कि क्या हुआ था। एक सुर थोड़ा सा नीचे आप उठाती शुरू करती ना, तो अंतरा में आपको थोड़ी सी मुश्किल नहीं होती है। रसूलिया थोड़ा सा वो उसमें फिर आवाज़ कंट्रोल में नहीं रहती है ना। उठा लिया, अच्छा पढ़ा आपने, आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन जब भी कभी शुरू करें तो उस स्केल से कि अंतरा टूटनी नहीं चाहिए। थोड़ा अंतरा में ज़रा सा फिर भी आपने संभाला उसको, तो ये है। बाकी अच्छी आवाज़ है, अच्छा माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा आपा ये बताइएगा इन लोगों को और जो हमारे नए पढ़ने वाले हैं और मेरे लिए भी, कि हमारे लिए बड़ों का अदब, अपने से बड़े जो सीनियर चाहे आपके फील्ड के हों या ना हो, वो कितना ज़रूरी है? अभी पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था कि बाअदब बानसीब होता है, और हम आज तक ऐसे हैं कि अगर हमारे उस्ताद अगर चल रहे हैं सामने, ये हमसे सीनियर, तो हम कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं कि उनका रुतबा जो है वो ज़ाहिर है कि हमसे ज़्यादा है। तो ये अदब होता है। फिर ये कि किसी नात के किसी भी महफिल में आप जाएं तो ऐसे पढ़ेंगे जैसे आप मदीने में बैठी हैं, सुभान अल्लाह। तो फिर ध्यान वहीं रहेगा आपका। यहाँ ऐसा नहीं होता हो रिया, आपने और क्या होगा। जी हाँ, जी हाँ। सारी दुनिया भर की बातें इसकी उसके, तो उससे थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। सिर्फ ये सोचें कि हम किसकी महफिल में आए हैं, ये महफिल पता नहीं मिले ना मिले। तो जितना दिल लगा के, जितना आप महव होकर और सरकार के रोज़े को कम से कम सामने रख के पढ़ेंगी, तो आपको ख़ुद भी पढ़ने में मज़ा आएगा, सुनने वालों को। सबसे बड़ा अदब तो यही है जी। और अदब का जो असर है वो गले पे पड़ता है। ध्यान आपका अगर उस पे है तो आप खुद ब खुद, आप मेरा साथ तो ऐसे होता है, ज़हनी तौर पर आप उस तरफ नहीं हैं, तो हाँ कि मैं सरकार के लिए पढ़ रही हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ, है ना। तो आप देखिए आपको पढ़ने में खुद ब खुद मज़ा आएगा। कोई ट्रेनिंग है, कोई, मैं किसी स्कूल नहीं गई, मेरा कोई उस्ताद नहीं है, लेकिन जब भी पढ़ा बस ये सोच के पढ़ा कि मैं बस खुद ब खुद, अल्लाह ताला बड़ा अच्छा मतलब रिज़ल्ट होता है अगर आप अच्छी सोच रखें तो। फिर अल्लाह और उसके रसूल का करम भी शामिल हो बिल्कुल, वो तो है ही करम, ये करम ही तो है जो बैठे हुए हम लोग साथ। बेशक बेशक, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। सुभान अल्लाह। अब नात
कलाम नातिया कलाम शामिल करते हैं और वो पेश करने की सादत हासिल कर रही हैं वजीहा नादिर। जलवे नालन के नजर आए, जलवे नालन के नजर आए, अब मुझे और क्या नजर आए, अब मुझे और क्या नजर आए, मेरे सरकार मेरे घर आए, मेरे सरकार मेरे घर आए, गिसुए मुस्तफा का क्या कहना, गिसुए मुस्तफा का क्या कहना, गिसुए मुस्तफा का क्या कहना, घर में अबरे करम उतर आए, घर में अबरे करम उतर आए, मेरे सरकार मेरे घर आए, मेरे सरकार मेरे घर आए, मेरे सरकार मेरे घर आए। सुभान अल्लाह। जी आप अच्छा पढ़ा, आवाज़ में थोड़ा सा कंट्रोल किया इन्होंने, उसको फैलाया नहीं, तो अच्छी लग रही थी आवाज़। अब इसको थोड़ा सा और मतलब कम कीजिएगा तो आपको खुद मज़ा आएगा। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मौसम का इफेक्ट भी है गले हाँ, पे। गला मेरा भी गला ठीक नहीं है चूँकि, और नात का इंतखाब बहुत अच्छा है, ख़ास रबीउल अव्वल की ये पहचान भी है, ये नात भी है, बहुत अच्छा पढ़ा। हुजूर की आमद का बहुत ही प्यारा कलाम, बहुत खूबसूरत, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र और उनकी आमद का ज़िक्र यकीनन बहुत खूबसूरत लगता है। ख़ास तौर पर अगर हम महफिल मिलाद में आमद का कलाम पढ़ते हैं तो वो जो एक रौनक होती है उसके हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि नॉर्मल हम जो नात पढ़ रहे होते हैं, जो तारीफ़ तो हर नात में मौजूद है, लेकिन आमद के कलाम की रौनक के बारे में क्या कहेंगे? आमद तो होती है, और अगर कलाम पढ़ दें तो एक माहौल बन जाता है, यानी कुदरती तौर पर आपको ऐसा लगता है, ज़ाहिर नज़र तो नहीं आता कि आमद हो रही है, सुभान अल्लाह। वो आमद दिलों में होती है, आमद तो माहौल में आमद हो जाती है। बेशक, बहुत बहुत प्यारी बात, बहुत खूबसूरत बात, और यकीनन बड़ों की यही बात होती है, सीनियर्स का अगर हमें साथ मिले और हमें बातें करने का मौका मिले तो यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब नातिया कलाम हम लेते हैं आयशा से कि आयशा कौन सा कलाम पेश कर रही हैं। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, उन्हीं से मजबूत कर लो नाते, जो दे के एहसान नहीं जताते, उन्हीं से मजबूत कर लो नाते, जो दे के एहसान नहीं जताते, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, हुजूर
देंगे, जरूर देंगे हुजूर, देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। फ़र्क आ गया अभी 10 मिनट के अंदर के कंट्रोल में कर लिया इन्होंने, वेरी गुड। और मांगो जो है वो ज़ाहिर अल्लाह से मांगता है इंसान, वसीला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। लोगों के दिलों में सुनने के बाद ये सवाल उठ जाता है और उठता है कि आप हुजूर से क्यों मांग रहे हैं। तो हुजूर से तो वसीला है वो, तो है ना, मांगते हम अल्लाह ही से हैं। बड़ा अच्छा इंतखाब है, बहुत अच्छा आपने पढ़ा, वेरी गुड। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और बहुत ही खूबसूरत कलाम। अल्लाह ताला अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हुरिया आपी जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? हुरिया आपी, मैं कंवल नवाज बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कंवल, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आपके तमाम गेस्ट, तुम्हें हबीबा आंटी, उसको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात सुनाएंगी आज कंवल? जी जी, आपको आला हजरत के भाई मौलाना हसन रज़ा खान का एक कलाम सुनाना चाहूंगी। जी बिस्मिल्लाह। तुम जाती खुदा से ना जुदा हो, ना खुदा हो, सुभान अल्लाह। तुम जाती खुदा से ना जुदा हो, ना खुदा हो, अल्लाह को मालूम सुभान है, अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जानिए क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत प्यारे अंदाज में पेश किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और इस यकीन के साथ जा रहे हैं कि आप हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सनाए सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत जो मौजूद हैं वो है मोहतरमा उम्मे हबीबा साहिबा, और यकीनन हम उनसे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं और यकीनन आप भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए और उम्मे हबीबा साहिबा के ज़रिए। बहुत कुछ जो उनका एक्सपीरियंस है वो हम तक शेयर हो रहा है और हम चाहेंगे कि आगे भी हमें टाइम दें और हम इनसे बहुत कुछ सीख सकें। प्रोग्राम का वक्त अब अख्ताम की तरफ है और हम चाहेंगे कि आप अपनी बहुत ही प्यारी सी कोई नात, यकीनन सारी नातें बहुत प्यारी हैं, और उनमें से कोई एक नात आप हमें मेहमानों को भी और व्यूअर्स को भी सुनाएं। बहुत शुक्रिया हुरिया, पेश करती हूँ। सल्ले अला नबी सल्ले अला रसूलना, सल्ले अला मुहम्मदिन। ए नूरे मुजस्सम क़द-ए ज़ेबाए मोहम्मद, आँखों में छुपा लूं जो नजर आए मोहम्मद, आँखों में छुपा मोहम्मद। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा कर, एक पल में सूए
मोहम्मद कुर्सी पे बिठाया उन्हें महबूब बना कर कुर्सी पे बिठाया उन्हें महबूब बना कर सब नबियों में खालिक को पसंद आए मोहम्मद सब नबियों में खालिक को पसंद आए मोहम्मद ऐ नूरे मुजस्सम क़द-ए-ज़ेबाए मोहम्मद आँखों में छुपा लूं जो नजर आए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा और बहुत खूबसूरत कलाम। और यकीनन सनाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी करते हैं अल्लाह ताला उन पर अपना करम ज़रूर नाज़िल फरमाता है, क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। नाज़रीन, प्रोग्राम से अपनी मेज़बान हुरिया फ़हीम को इजाज़त दीजिए। आखिर में हज़रत अदीब रायपुरी मरहूम का कलाम पेश करूँगी। और जी हाँ, आपका बहुत शुक्रिया, आयशा आपका बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पर हबीब आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आईं और आपने अपना जो वक्त हमें दिया वो हमारे लिए बहुत कीमती और बहुत ही खूबसूरत वक्त हमारा यहाँ पर गुजरा। सनाए सरकार की यादगार लम्हात में से ये वक्त था। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फिर हाजिर होंगे और हम यकीन करते हैं कि आप आगे भी हमें वक्त देती रहेंगी। नाज़रीन, अगले हफ्ते तक के लिए हुरिया फ़हीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आज इश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, आज इश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या, सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या, उन पर तो गुनहगार का सब हाल खुला है, उन पर तो गुनहगार का सब हाल खुला है, उस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या, उस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या, वो हुस्न दो
عجب کیا صحرا میں اگر پھول کھل آئیں تو عجب کیا آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے